Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all? I hope fine. So today in this video we will be dealing with the section 98 of the Indian Penal Code 1860. I have already covered of section 96 and 97. आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है, आईपीसी की प्लेलिस्ट में। आज हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 98 बोलता क्या है। देखो सेक्शन 98 काफी इंपॉर्टेंट है, उसको फोकस करना। Section 98 says about right of private defense against the act of a person of unsound mind. किसके एक्ट अगेंस्ट द एक्ट, किसका एक्ट के ऊपर, अगेंस्ट द एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा. See, when an act which would otherwise be a certain offense is not that offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the unsoundness of mind or the intoxication एक्सेट्रा लिखा है ना यहाँ पे, तो unsoundness of mind or the intoxication of the person doing the act or by reason of any misconception on the part of that person, every person has the right of private defense against that act which he would have if the act were that offense. क्या मतलब है इसका? As you know, it has been earlier seen that the acts of lunatics, intoxicated persons, or act done under mistakes are not offenses. आप लोगों ने जनरल एक्सेप्शंस में पढ़ा है, right? But now see, the right of private defense is available only against commission of offenses. ठीक है? Right of private defense is available only against the commission of offenses. So, Section 98 of Indian Penal Code, especially it provides that right of private defense extends to act would be offenses. किन acts right of private defense अगर extend करता है, कब वो क्या होगा, right of private defense extend कर सकता है. But for the fact that they are acts of youth, persons of unsound mind, act of intoxicated person, acts under misconception, लिखा है ना यहाँ पे अभी जो पढ़ा था. देखो सेक्शन 98 इंश्योर करता है that person does not lose his right of private defense merely because opposite party is illegally incompetent to commit an offense. right of private defense जो है, कोई भी person ये इंश्योर करता है, दोबारा बोलूंगी, अभी जो मैंने बोला उसे छोड़ो, आप समझो. राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो ये सेक्शन 98 के अंदर है, वो बात करता है कि सेक्शन 98 इंश्योर करेगा दैट पर्सन जो है वो लूज नहीं करता अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मेयरली बिकॉज अपोजिट पार्टी जो है वो इनकॉम्पिटेंट है कि वो ऑफेंस कमिट नहीं कर सकती, और या फिर कि एज वी नो अनसाउंडनेस, इंटॉक्सिकेशन, जनरल डिफेंस, जनरल आपने एक्सेप्शंस के अंदर पढ़ा है, ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड. तो अगर वो incompetent है to commit an offense and is protected because of legal abnormality, right? So suppose if a drunken man, एक कोई drunken man है, अगर वो कानून को ब्रेक करता है, लॉ को, if he is breaking the law and attacks either the person or property of the other people, any member of the public is entitled to exercise the right of private defense against such attack, right? Even the drunken man himself is entitled to the protection. Drunken man, even he can get protection under the law. और any member of the public वो क्या कर सकते हैं, they can exercise a right of private defense कि वो उस जो वो drunken man था, अगर if he is breaking the law, अगर वो किसी person को अटैक करता है, अटैक करने वाला है, तो कोई भी person आकर उसको बचाने की कोशिश तो कर सकता है उस drunken man से. So section 98 it is based upon the fact that the right of private defenses arise from the human instinct of self-preservation and not from any supposed criminality of the person who possesses danger to body and property. यानी कि अगर कोई अनसाउंडनेस ऑफ अनसाउंड माइंड का पर्सन या फिर इंटॉक्सिकेटेड पर्सन या फिर
or by any reason of misconception any person or on the part of the person, अगर वो पर्सन आप लोगों को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तब आप भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उनके ऊपर यूज कर सकते हैं. दो they will be entitled to protection of law, but you can also can you will also be getting protection under section 98 of the Indian Penal Code. आप लोग भी अपना प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का. सिंपल सा था, पहले समझाने में टाइम लगता है, बट अब जाकर समझ में आया कि कोई भी आप लोग उनके ऊपर भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं. कोई भी अगर अनसाउंड माइंड का पर्सन है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा है, किसी भी ऑफिस हाथ में कुछ पकड़ लिया उन्होंने, ठीक है, अब आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, दे डोंट नो अबाउट द ऑब्जेक्ट बिकॉज दे आर अनसाउंड माइंड. अगर वो अनसाउंड माइंड का है, दे आर नॉट हैविंग सफिशिएंट लेवल ऑफ मेच्योरिटी, फिर भी आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप तो बचने की कोशिश करोगे डेफिनेटली, तो आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस समय इस्तेमाल कर सकते हो. नाउ सी द इलस्ट्रेशन. दो इलस्ट्रेशन है वैसे सेक्शन 98 के अंदर, दोनों ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं. ए वाला इलस्ट्रेशन देखते हैं. ये बोलता है कि जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस ही अटेम्प्ट्स टू किल ए. देखो साफ सीधी बात है, जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस हियर, बट ए जो है वो अपना सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है जेड के खिलाफ, विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेन. जैसे अगर वो यूज करता, अगर जेड सेन होता, एक होता है इनसेन, एक होता है सेन, अगर जैसे अगर जेड सेन होता, जैसे वो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करता उस सेन पर्सन के ऊपर, जैसे कि द पर्सन हु इज हैविंग सफिशिएंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट द पर्सन नोज व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, इज दैट पर्सन इज नोन एज सेन, राइट. अगर उसको पता है, अगर वो सेन पर्सन होता, तो उसके खिलाफ वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करता ए, राइट. बट यहाँ पे अगर जेड के पास सफिशिएंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है, ए तब भी अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है एज पर सेक्शन 98 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 18. सेक्शन 98 टॉक्स अबाउट. समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा. स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत होती है, बट धीरे धीरे लैंग्वेज को समझते हैं हम तो हमें समझ में आ जाता है. सेक्शन 96 97 को पहले पढ़ो, फिर 98 पे आओ, और केसेस पढ़ने हैं तो उसके लिए. So this was all about this video, and if you people have any doubt, do let me know below in the comment box, and do like and subscribe my YouTube channel for more videos. Thank you so much for watching.